بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بیٹا آج ہم حصہ نظم میں حمد کریں گے۔ کل ہم نے مولانا الطاف شنہالی کا تعارف کیا تھا۔ آج ہم حمد کی اشعار نمبر 1، 2 اور 3 کی تشریح دیکھیں گے۔ شعر نمبر 1: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سر تیرا۔ جی بیٹا مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ قبضہ قدرت، سوا زیادہ بڑھ کر، بندہ نافرمان بندہ، حمد سر تعریف کرنے والا۔ جی مفہوم کیا ہے اس کا؟ اے اللہ مجھ جیسے نافرمان بندہ بھی تیری حمد کر رہا ہے تو یہ دلوں پر تیرے قبضے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جی بتائیے تو تھا اس کا مفہوم۔ تشریح طلب نکات: دلوں پر قبضہ، بندہ نافرما ہے حمد سر تیرا۔ جی بیٹا پہلے شعر میں ہم دیکھتے ہیں، شاعر یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا بھرپور اظہار کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں، پھر بھی اس ذات کریمی نے مجھے اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سارا لطف و کرم اسی کا ہے جس نے میری نافرمانیوں کے باوجود مجھ پر رحمت کی بارش کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے اور اپنے انسان سے بے حد پیار کرتا ہے۔ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اس لیے اس کا وجود گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے، لیکن رب کی رحمت اور مغفرت اتنی وسیع ہے کہ انسان کے گناہوں کے دریا اس کی رحمتوں، نوازشوں اور بخششوں کے سمندر میں گر کر اپنا وجود کھو دیتے ہیں۔ حوالے کے لیے شعر ایڈ کریں گے اس میں۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ دراصل شعر میں شاعر اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ گناہوں کے اعتراف پر اللہ رب العزت کو ترس آ جاتا ہے۔ شاعر جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ کے حضور اس کی عاجزی، گناہوں کا اعتراف خود عبادت ہے۔ ایک بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے، اور بندے کا کام یہی ہے کہ وہ ایک محتاج فقیر کی طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہے۔ جی بیٹا یہ تو تھا شعر نمبر 1 کی تشریح کہ مولانا الطاف سینی اس شعر میں کہتے ہیں کہ بے شک میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے منتخب کیا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے دلوں پر جو قبضہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا انسان کے دل پر قبضہ ہے تو اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ انسان سے کروا سکتا ہے۔ تو شاعر اس شعر میں خوش ہے کہ میں گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ بیٹا حوالے کے لیے ہم کچھ آیات کا ترجمہ اور اشعار جو ہے وہ ایڈ کریں گے۔ ترجمہ ہے، اور اللہ سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ جی انسان کے دل میں جو باتیں چھپی ہیں، جو صرف وہ سوچتا ہے اس کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ بھی جانتا ہے۔ اور اس شعر میں شاعر جو ہے وہ گناہ گار ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، میری تو ساری زندگی جو ہے وہ گناہوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ میرا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی حمد و ثنا کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا ہے۔
ना कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्मे खाना खराब को तेरे अफे बंदा नवाज में। जी बेटा, हवाले के लिए हम इकबाल का जो शेर है वो यहाँ पर ऐड करेंगे तशरीह में। आगे हम शेर नंबर 2 देखते हैं। गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। जी, मुश्किल अल्फाज के मायने गो अग्रचा, मुकद्दम पहले, अव्वल, बंदे से इंसान से। इस शेर का मफहूम देखते हैं। ऐ अल्लाह, अग्रचा हम पर फर्ज है कि सबसे पहले तेरा हक अदा करें, मगर हम बंदों से तेरा हक कैसे अदा हो सकता है। तशरीह तलब नकात कौन से हैं? अल्लाह का सबसे पहले मुकद्दम कि अल्लाह ताला का हक क्या है सबसे पहले, बंदा इंसान कैसे हक अदा कर सकता है। जी बेटा, एक दूसरे शेर में शायर ये कहते हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात के दर्जे पर फाइज किया है, सबसे आला जो है वो मखलूक बनाया है, इसे अक्ल जैसी नेमत अता की है, फिर इसी इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को भेजा। आखिर में हिदायत के लिए कुरान जैसी अजीम किताब अता फरमाई जो जिंदगी के हर शोबा में मुकम्मल रहनुमाई करती है। इन सब का तकाजा है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अतात व फर्मा बरदारी करे और इसके हकूक़ को सबसे ज़्यादा मुकद्दम रखे। लेकिन इंसान अपनी तख्लीक के असल मकसद को भूलकर दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाता है, हालांकि अल्लाह की अतात और फर्मा बरदारी सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। अल्लाह ताला के हकूक़ अदा करने का मतलब उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना है, और ये नेमतें इस कदर बेशुमार हैं कि खुद अल्लाह पाक ने बार बार कुरान पाक में इनका जिक्र फरमाया है। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। बेटा, शायर शेर में ये कहना चाहता है कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें अता की हैं, सबसे पहला तकाजा ये है कि हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला की बंदगी अदा करें, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी अदा करें। सबसे ज़्यादा हक जो है वो अल्लाह ताला का है कि अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला ने ये इतनी प्यारी दुनिया बनाई है, ये कायनात बनाई है, किसके लिए? इंसान के लिए। तो जिसने ये सारी चीज़ें, ये सारी नेमतें हमें अता की हैं, तो सबसे पहला हक उसका है कि हम उसका शुक्र अदा करें, उसकी नेमतों का शुक्राना जो है वो अदा करें। लेकिन इंसान जो है वो खता का पुतला है, वो अपनी तख्लीक का जो असल मकसद जो है वो भूल चुका है, वो दुनिया में गुम हो चुका है। लेकिन शायर ये कहता है कि हमारा सबसे पहले जो हक है वो कैसे है कि अल्लाह ताला की अतात व फर्मा बरदारी अदा करनी है हमने। सच अल्लाह ताला की नेमतों का सबसे बड़ा इजहार शुक्र है। इंसान इस ज़ाते बारी ताला की नाफरमानी छोड़ दे। जी, अल्लाह ताला की नेमतों का जो शुक्र है वो कैसे अदा कर सकते हैं? अल्लाह की हम फर्मा बरदारी करें, अल्लाह ताला की इबादत करें। अल्लाह ताला ने अपने कमाल कुदरत से सारी दुनिया को तख्लीक किया है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने सारी दुनिया को तख्लीक किया है। जो ज़ाते पाक ऐसी मोहसिन और मुरब्बी हो, उसके अहकामात की हुक्म, अदूली, एहसान, फरामोशी ये नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ उसी ज़ात से मोहब्बत करनी चाहिए जिसे कभी फना नहीं होना। अब दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं अपनी कमजोरी बयान करते हुए, कहता है कि इंसान अपनी हिम्मत के मुताबिक अल्लाह ताला की इताअत करने की कोशिश करते हैं। शायर कहता है कि मैं अपनी हिम्मत और अताअत के मुताबिक जो है अल्लाह ताला की बंदगी अता करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं कर सकते। चुनांचे हम अल्लाह ताला की इताअत करते हुए अपनी जान का नजराना भी पेश करें, फिर भी अल्लाह की इताअत का हक अदा नहीं हो सकता। बकौल गालिब जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। जी बेटा, इस शेर में शायर ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये दुनिया दी, दुनिया की सारी नेमतें अता की, लेकिन हमने उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया। मेरे में इतनी एबिलिटी नहीं है, मेरे में इतनी खूबी नहीं है कि मैं अल्लाह ताला की तमाम नेमतों को जो है वो शुक्र अदा कर सकूं।
सबसे पहला हक किसका है? इंसान कहता है कि शायर ये कहता है कि सबसे पहला हक जो है वो मेरे खुदा का है मुझ पर, कि मैं अल्लाह ताला की बंदगी करूं, अल्लाह ताला की अताअत करूं, अल्लाह ताला ने जो मुझे नेमतें अता की हैं उन नेमतों का मैं शुक्र अदा करूं, तभी मैं अल्लाह ताला का जो हक है वो अदा कर सकता हूं। जी स्टूडेंट, शेर नंबर 3 देखेंगे। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह ना सका जिस पर या वेद खुला तेरा, महरम वाकिफ जानने वाला, ना महरम ना वाकिफ ना जानने वाला, या यहाँ मुराद दुनिया में वेद राज। जी बड़े शेर का मफहूम देखेंगे। ऐ अल्लाह, तुझे जानने का दावा करने वाले भी ऐसे ही हैं जैसे तुझे ना जानने वाले, जिस पर भी तेरा राज खुला वो किसी को कुछ भी बयान ना कर सका। तशरीह तलब नकात है, महरम और नामहरम एक जैसे, अल्लाह का राज। जी बेटा आप तशरीह देखते हैं। चाहे इंसान खुली आंखों से कायनात का मुशाहिदा कर रहा है, मगर इसकी हकीकत और असलियत को पा लेना हर किसी के नसीब में नहीं। इसकी कुदरत के शाहकार नमूने सूरज, चांद, सितारों को देख रहा है, फिर भी अंधेरों में है। अल्लाह खुद बसीरत की आंख अता ना फरमाए, इंसान तब तक जो है वो कुछ भी देख नहीं सकता। इसलिए पूरा जहां तारीख ही तारीख रहे। इंसान को दिल का नूर तभी नसीब होता है जब वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने खालिक व मालिक के हवाले कर दे। जी बेटा, अगर इंसान जो है खुली आंखों के साथ कायनात का मुशाहिदा करता है और कर रहा है, लेकिन उसकी हकीकत को पा लेना हर एक के बस का काम नहीं है। ये अल्लाह ताला के कुछ महबूब बंदे ही होते हैं, अल्लाह ताला के नेक बंदे ही हैं जिसको अल्लाह ताला ये बसीरत जो है वो अता करते हैं कि वो कायनात के राज को पा सके। जब इंसान अल्लाह ताला की मुसलसल इबादत और रियाजत और मुजाहद करता है तो एक मुकाम में ऐसा आता है कि उसको अल्लाह ताला की किसी कदर मार्फत हासिल हो जाती है। जी बेटा, शायर शेर में कहते हैं कि जब इंसान अल्लाह ताला के साथ अपनी लो लगा लेता है, अल्लाह ताला की इबादत में अपनी जिंदगी को गुजार देता है, तो फिर एक मुकाम आता है जहां पर अल्लाह ताला अपनी पहचान करवा देता है, लेकिन वो इस कैफियत को बयान करने से कासिर हो जाता है। बेटा अल्लाह ताला के जो नेक है, यहाँ पे औलिया कराम जो है, वली अल्लाह जो है, पैगंबर जो है, जब वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला को जब उनकी इबादत पसंद आ जाती है तो अल्लाह ताला अपना जलवा दिखा देते हैं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो अल्लाह ताला ने अपना जलवा दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर में जाकर अल्लाह ताला की इबादत करते थे तो वहां पर अल्लाह ताला ने अपना जलवा दिखाया। तो इसी तरह जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, जब अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो अपनी मार्फत उनको करवाता है। तो जब इंसान को अल्लाह ताला की पहचान हो जाती है तो वो इस पहचान को, इस कैफियत को बयान करने से कासिर होता है। इसलिए हाली दावा कर रहे हैं कि जिस पर अल्लाह ताला की हकीकत जाहिर हो जाती है वो इसकी शान किब्रियाई और अजमत बयान करने से कासिर रहता है। वो कहते हैं कि जो इंसान अल्लाह ताला की हकीकत को पा लेता है, जो इंसान अल्लाह ताला को देख लेता है, अल्लाह ताला को जान जाता है, वो अल्लाह ताला की हकीकत को बयान करने से कासिर रहता है। वो अल्लाह ताला की हकीकत को बयान ही नहीं कर पाता, क्योंकि इबादत और रियाजत से कुर्बे इलाही तो नसीब हो जाता है, लेकिन इस कायनात के खालिक व मालिक को मुकम्मल तौर पर समझना इसके बस की बात नहीं होती। जी बेटा, इस शेर में शायर कहते हैं कि इंसान जो है वो इबादत करता है, इबादत से वो कुर्बे इलाही, अल्लाह ताला का कुर्ब, अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है वो तो हासिल कर लेता है, लेकिन इस कायनात के खालिक व मालिक को मुकम्मल तौर पर समझना जो है वो इसके बस की बात नहीं है। इसलिए हाली कहते हैं कि जिस पर अल्लाह ताला की ज़ात के राज जाहिर हो जाते हैं वो भी इसकी ज़ात के बारे में बता ना सकने की वजह से ना जानने वालों के मुतादिफ होते हैं। जी बेटा, अब शायर ये कहता है
کہ جو جان گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا ہے، وہ بھی ویسے ہی ہیں جنہوں نے نہیں پہچانا۔ کیسے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جان تو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پا تو لیا ہے، لیکن وہ اس کو بتانے سے قاصر ہیں، وہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کس طرح کا جو ہے وہ پایا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ یہاں پر جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں جو ہے وہ برابر ہیں، وہ بھی اس کے ذات کے بارے میں بتا نہ سکنے کی وجہ سے نہ جاننے والوں کے مترادف ہے، گو محرم اور نامحرم دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ جی بیٹا یہ تو احمد کا شعر نمبر 3۔ بیٹا ہم نے شعر نمبر 1، 2 اور 3 ان تینوں کی تشریح کی ہے، مشکل الفاظ کے معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ بیٹا یہ آپ نے تینوں اشعار کی جو تشریح ہے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم۔ یہ دو باتیں اگر آپ کو اچھے سے آتی ہوں، مشکل الفاظ کے معنی اور اگر آپ کو مفہوم کی سمجھ آ جائے، تو تشریح کا جو کام ہے، تشریح کرنا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشکل بات نہیں ہے۔ تو بیٹا آپ نے مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور تشریح جو ہے وہ خود سے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔